Good evening. I'm Dr. Liaquat. I'm your host for tonight, and I take great honor and pleasure in introducing today's speaker, who is very close friend of mine, who is a very devoted homeopath from Bombay, a very senior person. Uh, Dr. Dilip Jani, I know since almost I think last 10-12 years. He's into homeopathy, purely into mind methods since last 10-12 years, and he's senior than me, and he's using all his wits and all his wiseness and his empathy for the betterment of homeopathy. Friends, he used to do general practice before, and he's converted to homeopathy, which I feel so very proud. Look at him. He's an inspiration for doctors who are doing general practice and those who want to really get converted to homeopathy, come back to homeopathy. You should contact Dr. Dilip Jani, sir. And he's so passionate homeopath that he has done CCMP also from Sholapur, though he's practicing in Bombay. He's done his CCMP course, which is required to be able to practice allopathy. So there is no age for studies. That is what Dr. Dilip Jani sir is the greatest example to understand for all of us, guys. So without wasting much of time, I request Dr. Dilip Jani sir to kindly start the lecture and share his knowledge with all of us. Thank you. Over to you, Dilip. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Shall I start, sir? Yes, please start. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. So first of all, gratitude to all our masters and our teachers, Dr. Animan sir, Dr. M.L. Segal sir, Dr. Sanjay Segal sir, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Syamal Kishore sir, and Dr. Liaquat sir, Dr. Man sir. And thank you, Dr. Liaquat sir, Dr. Pranita ma'am, Dr. Mansi ma'am, and all team PHF to giving me the opportunity to share my knowledge. So today we'll share about psoriasis. Psoriasis जो है ना वो जनरल प्रैक्टिस के लिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. But when I started practicing homeopathy, so how easy it becomes for us to means cure the patient, not only to relieve the patient but to cure the patient. तो हम लोग देखते हैं आज. Screen is visible, sir? Hello? Yes, sir. So first start करते हैं psoriasis से, little bit ये disease का knowledge लेते हैं, and I have 2 cases to share, and if time permits one more case I have. तो psoriasis का meaning क्या है? Psoriasis का meaning है psoria means itch. Psora जो है it is a well known term in our this thing homeopathy, जो हम लोग miasm बोलते हैं psora, but उसका जो main meaning है ना that is itch. And iasis means action condition, means it is a condition which causes itch. इसका इनिशियल अगर नॉलेज लेते हैं तो इट इज अ लीजन विथ वेल डिमार्केटेड erythematous patches we see which are covered loosely adherent with the scaly scales. This lesion can be of various size and shapes, and they may appear on any part of the body. Especially they appear on the extensor surface, especially the knees, elbows. They may appear on the sacral part, then on the scalp also. See, these are the pictures. These are the means plaque with the well demarcated part with the this thing scaly lesion. Then here we see the psoriasis of the this thing leg of the sole. This is a palmoplantar psoriasis. Then these are the well demarcated patches of the psoriasis with silvery scales. So we'll see what is the reason for these scales. These lesions, if appear at the site of trauma, it is known as Koebner's phenomenon. And psoriasis ka importance है, it is a hair and mucous membranes are usually not involved in this. And what is the reason for the scale is this, we see the silvery scale. There is almost 10-fold increase in the cell division of the epidermal cell. जो epidermal cell है उसमें cell division very fast हो जाता है. So this leads to the formation of immature epidermal cells which are said as
scales. So इसके लिए that's why we see the silvery scales in psoriasis. Now this slide is very important. All the 3 points are very important for our point of view, from the homeopathic point of view. And these points are taken from one book of dermatology, one book by ELBS publication of dermatology. They write the disease undergoes spontaneous remission and relapses at various intervals, but most patients are worse during winter. So the significance when we treat the disease, when we treat psoriasis, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि लीजन्स डिसअपियर हो गया, अच्छे हो गया, पेशेंट अच्छा हो गया, वी बिकम हैप्पी. बट it is not so. If the psoriasis does not recur for 2 years, for 3 years, or 5 years, then only it is considered as a cure. सिर्फ लीजन्स डिसअपियर हो जाता है तो दैट डजंट मीन कि वी हैव क्योर द पेशेंट. सो दिस पॉइंट सिग्निफाइज दैट हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लीजन डिसअपियर हो गया, वी बिकम हैप्पी, बट इट इज नॉट सो. हम लोग को वी हैव टू वॉच आउट दैट लीजन शुड नॉट अपीयर अगेन, देन ओनली इट इज नोन एज क्योर. Then triggering factors are physical and emotional stress. See, this point is also very important because we mainly deal with the emotional stress. हम लोग पेशेंट को पूछते हैं ना कि आपका स्ट्रेस क्या है, आपका टेंशन लेवल क्या है. सो इट इज रिटन इन द बुक्स ऑल्सो. सो and to ignore the impact of the disease on the patient's life is to fail on treating psoriasis. मतलब पेशेंट का लाइफ जो है उसमें psoriasis का क्या इफेक्ट है, that is also very important. See, this is said by these books now, but what our master has said, no, many years back, we feel proud for this. See what Dr. Hahnemann has said to us, aphorism 189, if you read, and yet very little reflection will suffice to convince us that no external malady, not occasioned by some important injury from without, can arise, persist, or even grow worse without some internal cause, without the cooperation of the whole organism, which must consequently be in a disease state. Means if organism is disease, then only it can throw out any skin eruption. We feel the skin condition is a local one, whether it is a psoriasis, whether it is alopecia, vitiligo, or anything. But it is, if the organism is sick, then only it can throw out such eruptions, not otherwise. It could not make its appearance at all without the consent of the whole of the rest of the health and without the participation of the rest of the living whole. Means without patient becoming sick, it is not possible to suffer from the psoriasis or in that way from any disease. See this slide, what it says, the last point in the this books of dermatology, and what our master has told many years back. And for that reason, only the local means ointments and everything is not much important. If the disease has come from inside, we have to treat the disease, means disease from inside with the oral medication. The true medical treatment of the disease on the external parts of the body that has occurred from the little or no injury from without must therefore be directed against the whole, must effect the annihilation and cure of the general malady by means of internal remedies. If it is wished that the treatment should be judicious, sure, efficacious, and radical. So what our master has told many years back, now people are following. So we should feel proud for this. Now the case one is I will share one little audio and then we'll share the description. आवाज आ रहा है ऑडियो का? Audio file can be seen? No, sir. Okay, then first I'll stop sharing and then start. Is it audible now? Yes, sir. See, this is around 53-year-old male patient
he was suffering from psoriasis. Now see, whatever conversation has happened, from that only I have prescribed the medicine and the patient is much relieved. Now it is since 1 year, means the patches are disappeared, itching and everything has gone now. Please listen to this file. ते सोरेसिस चालू झालं जोरात बोला जरा. सोरेसिस चालू झाले त्याच्या आधी काय तुम्हाला टेन्शन होतं? It is in Marathi. So I am asking the patient, before starting of the psoriasis, means what was the stress with you? घरगुती टेन्शन काय होतं हे सांगा. Means any garguti tension, means anything related to your house or like that, means any stress from the house. घर वगैरे तुटलं ना त्याच्यामुळे Patient is telling, माझ्या घर वगैरे तुटला, my home was demolished. म्हणजे खडोलीला घर होतं पूर्ण घर तुटलं माझं. He was staying in Khadavli. He was staying in Khadavli, and there his house was demolished. I'll tell you the before story. First, he was staying in one small, means in a slum area of Andheri. Andheri is a good place. Means even if you buy a small hut there, it will cost lakhs of rupees. Means at least 30-40 lakhs rupees. From there, because of some financial stress, he shifted to Khadavli. Khadavli is a faraway place in Mumbai suburb. Means the place is very cheap. Those who have the low financial budget, they go there. So he sold this place here and he went to Khadavli. Khadavli, what happened is, because of road expansion or something happened and his house was demolished. So he was literally on the road and there he was staying on the rental basis. ते खडोलीला होता. अच्छा ओके तर ते घर वगैरे तुटलं मग त्याच्यानंतर मी जोरात बोला. एकटाच असल्यामुळं सगळं काही हां मुलं वगैरे I was alone. Means my children were very small. लहान हां मुलं वगैरे लहान होती त्यामुळं मुलं वगैरे लहान होता. My children were very young, very small. टेन्शन येतच गेलं. Means त्याच्यामुळे टेन्शन येतात. Because of that, I was under stress. अच्छा मध्ये मग लकवा आला होता. And during that period, I had a lakwa, means I had a paralysis. मला मला अच्छा लकव्यातून बरं झालं पण हे त्यातून मी आता बरं झालं. Means I am better with the from the paralysis. हे काही बरोबर. घर कधी तुटला होता? किती But I could not get better with the psoriasis. Then I am asking, ki when your house was means demolished, वर्ष झाले? त्याला पण 4-5 वर्ष झाली. 4-5. अरे 4-5 years before. लकवा कधी आला होता? लकवाला 3 वर्ष झाली. And this paralysis happened 3 years before. 3 वर्ष झाले. अच्छा मग आता घर तुटलं मग कुठे राहतात तुम्ही? आता भाड्यानं राहतो इथेच. Now I am asking him, now how are you staying? तो बोला की I am staying on the rental basis. अच्छा काम कुठे करतात? काम तर सांगितलं कडधान्य विकतो. Then I asked him की काम काय करतात, means what are you working now? तो बोलताय की I am means कडधान्य विकतात, means I am having a small this thing lari type. On that I sell कडधान्य, means this all the anaj and all that. त्याला स्टुडिओ होता ना. हां 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 बरोबर. पहिला स्टुडिओ होता. Previously he had a photo studio where he was staying in Andheri. He had a photo studio. आता कडधान्य विकतात. कडधान्य. स्वतःचे आहे भाडीने आहे? नाही ते रोडवर विकतो. रोड Means I was thinking he might be having a small shop on the rental basis, but not like that. He was means selling on the roadside. अच्छा संध्याकाळचा वेळ. अच्छा बरोबर आहे. किती मुलं आहे तुम्हाला? एक मुलगा आणि एक मुलगी. How many children? One boy and one daughter and one son. बरोबर आहे. एक मुलगा एक मुलगी. बरोबर आहे. वय किती आहे त्यांची? मुलगा आता मुलगी 12वीला आहे. हां Daughter is in 12th standard मुलगा फायनल झाला आता. and the son is in final year BSc. किसला फायनल झाला? कशामध्ये फायनल झाला? BSc. अच्छा कामाला लागला का तो? आता अपेंडिक्सवर लागला आहे. Means he has not yet started working. Means just he is in the internship basis. अच्छा घराचा खर्च वगैरे कसे चालवतात मग? ते याच्यावर कडधान्यावरच. Then I asked him, then how do you run your house expense? Then he's told, ki whatever I am selling of this, from that only I run my house. असं आहे का?
होतात काय एवढं? ते कधीतरी भागावं लागतं का हा काय कधीतरी भागवतो आम्ही. बरं. Means कसं तरी वागवता. Means first I asked him की can you means run your house from this only this much earning? Then he told कसं तरी वागवतात. कसं तरी वागवतात means means somehow or the other I am running means I am just living. बरोबर आहे, बरोबर आहे. So this was the case. Shall I share the follow-up also? Yes, sir. Yeah, 1 minute. This is the first follow-up. कसं आता? आता खरं काय जातं खाज अजिबात नाही आता. हा खाज नाही आता. खाज Now नाही there आली. is no itching. पहिलं तर पुतळे येत होते ना पुतळे येत नाही आता. हा. Utkade means small boil-like things were coming. That is also not coming now. थोडं म्हणजे आज खाजवलं हा Today little bit itching is there. इतकी दिवस खाजवलं नव्हतं आज दिवसांत. किती दिवस खाजवले नव्हते ना? नाही खाजवलं नव्हतं. बरोबर. खायचं काही आहे का ते सांगा मला. जास्त तिखट तेलकट मटन मच्छी वगैरे नाही नाही मटण मच्छी खातच नाही. चालेल. बाकी बाकी काही नाही. आरोग्य काही नाही. पहिलेपेक्षा कसं वाटतं आता तुम्हाला? पहिल्यापेक्षा भरपूर आला. बरोबर पहिल्यापेक्षा भरपूर. बरोबर. आतापर्यंत काय काय इलाज केले तुम्ही? हे बघ नाही इथे यायच्या आधी याच्या आधी घाटकोपरला चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये गेलो होतो. आणि घेतलं तिथं औषध करून काही फरक नाही पडला. असं का? पाय वरती ठेवा जरा. I'll share one more follow-up. पेक्षा किती This is the कमी last आला one. आता? पहिल्यापेक्षा किती कमी आला आता? 90% होतं साहेब. पहिला कसं होतं हा खाज वगैरे कशी आता? पहिलं तर खाज भरपूरच होती. आता खाज नॉर्मली आली तर आली रात्रीची येते. रात्रीची येते. बरोबर. बस दुसरं काहीच नाही. हे बघा इकडं पण तर होमिओपॅथिकची औषध आता किती आली? संपली. संपली मी सगळी. गावाला कधी गेलो संपली? ना, कालच आलो मी. अच्छा म्हणून बरोबर. ते औषध पण द्या आपण आलो. बरं. So this was the case. See, whatever I told you is this. This 53-year-old, first he was staying in Andheri, and now because of financial crisis, he shifted to Khadauli. There also room went under demolition, so he has to stay on the rent. And that time only he got hemiplegia. Then he told, my children are very young and I am alone earning member. I recovered from paralysis but could not recover from psoriasis. And now staying on the rental basis
work as a kirana vendor on the road. Then previously he had a studio. And son and daughter both are studying. Then how do you manage the home expenses? He told, Kasatari Wagauto means somehow I'm living. So anybody would like to share? Hello? हेलो गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ सर, उसकी आवाज सुन के उसको मतलब उसका पूरा सुन के मुझे ना ऐसे सिंपैथी आई उसके ऊपर कि बेचारा, ऐसा फीलिंग आया मुझे कि मतलब घर टूट गया फिर रेंट पे, मतलब अच्छा प्लेस से एकदम पुअर कंडीशन में है अभी। तबीयत भी खराब थी, हेमिप्लेजिया के बाद भी वो रिकवर हो गया और कर रहा है। तो मुझे मतलब ऐसा बहुत ऐसा दयनीय अवस्था लगी उसके मतलब जैसा वो बात कर रहा था उससे। Right. Very good. बहुत अच्छा. और कोई शेयर करेंगे? सर नमस्ते, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. सर मुझे लगता है ये जो हो गया है उसमें लगता है फॉर्च्यून रिवर्स हो गया है। तो फर्स्ट रूब्रिक आई हैव टेकन एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। सेकंड, ही फील्स अनफॉर्चुनेट। थर्ड, ये सबको एक्सेप्ट करके ये किराना तो बेच देता है। थर्ड इज ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट। ये 3 रूब्रिक्स में लिया है। बहुत अच्छा. तो क्या मेडिसिन कुछ आती है? मेरा सर स्टारनम आता है। ओके. बहुत अच्छा. वेरी गुड. और कोई शेयर करेंगे? कि जितना जो ऑडियो सुना उतना ही केस टिकिंग था. और आगे कुछ रहेगा लेकिन दैट वाज नॉट मच इम्पोर्टेंट. इट वाज वेरी शॉर्ट मीन्स 5 or 7 minutes केस टिकिंग. Silent grief. Silent grief. हेलो, कोई बोल रहे हैं? Silent grief. साइलेंट ग्रीफ. Yeah. आवाज नहीं आ रही सर. Yes, yeah, correct. Silent grief. Hello. Silent Yeah. grief. साइलेंट ग्रीफ. Yes. ओके. तो सदमे में पहुंचा है ना. मेरे घर से भाड़े में आया तो उसको एक शॉक लगा अंदर. राइट. ऐसा मुझे लग रहा है. ओके. एनीबडी एल्स? और कोई शेयर करेंगे? हेलो सर। या. सर मैं रुब्रिक तो पे
कोई नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। हाँ मुझे फील तो कैलकुलेटर फ्लोर का है, डेली ओके। यूजेस के, रोज कमाना रोज खाना, उसके उसका ही टेंशन है। उसके लाइफ में दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता। खाली राइट। क्या कर सकता है, जितना होता है वो करके बच्चे को एजुकेशन हो, उसके डेली की नीड यही है। बाकी कुछ ये विश होके भी तो नहीं कर सकता। राइट फील मुझे कैलकुलेटर फ्लोर का है। राइट। कलकत्ता फ्लोर का भी एक रूब्रिक है शायद इसमें। देखो उसका फर्स्ट केस चेकिंग था, सेकंड थर्ड, इसमें जो टोन का फर्क लगा क्या आपको? ठीक है ना, फर्स्ट में देखो उसका टोन है, उसका वॉइस है, वो कितना लो है। सेकंड में थर्ड में मतलब कितना हाई स्पिरिटेड टाइप उसका वॉइस है, देखो। ओके, तो डिस्क्लोज करते हैं। जो फर्स्ट जो रूब्रिक मेरे ध्यान में आया था ना, उसका टोन देख के और उसका जो बिहेवियर देख के, दैट वाज डेल्यूजन पुअर। मीन्स इतना उसका ये कंडीशन था। और सेकंड थिंग जो रूब्रिक मेरे ध्यान में आया था वो पैथेटिक। तो डेल्यूजन पुअर और पैथेटिक ये दो ही रूब्रिक पकड़ के मैंने उसको सीपिया दिया था। आई विल शेयर दिस। ठीक है, डेल्यूजन पुअर एंड पैथेटिक। पैथेटिक जो अभी मैम ने बोला ना, इट इज अ कंडीशन जिसमें हमें उसके ऊपर सिंपैथी आती है, सैडनेस फीलिंग होती है। तो स्पेशली बिकॉज पर्सन और एनिमल इज सफरिंग, मीन्स ऐसी कंडीशन में कौन जी सकता है? इट इज अ दयनीय कंडीशन जो बोलते हैं ना, कैसा ये कंडीशन में आदमी रहता है। मीन्स ऐसे भी ह्यूमन बीइंग ऐसे भी ये कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो रियली लिटरली अपने को अंदर से रोना आता है कि कैसी कंडीशन थी और क्या कंडीशन थी। और ये भी रूब्रिक मेरे माइंड में था, रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। देन ये बोला था उसने कि डेल्यूजन अलोन बीइंग, कि मैं अकेला हूं और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। फिर एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, बच्चे लोग सब छोटे हैं, हाँ, की लहान लहान मुलं आहे आणि मी एकटा आहे कमावण्यासाठी. आणि डिस्पेयर अबाउट एग्जिस्टेंस, अबाउट मिजरेबल एग्जिस्टेंस। मीन्स ये कंडीशन में भी आदमी ऐसा जी सकती, सो मच डिस्पेयर, ये मिजरेबल कंडीशन है। एंड एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। तो इनिशियली मैंने ये दो रूब्रिक लेके सीपिया दिया था, लेकिन रिट्रो में ये रूब्रिक भी मैंने लिया था, डिल्यूजन अलोन, डिल्यूजन दिस एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, डिस्पेयर अबाउट मिजरेबल एग्जिस्टेंस एंड एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। तो ये सब मिलाएंगे ना तो सीपीआई इज कमिंग प्रोमिनेंटली। तो इनिशियली ये दो रूब्रिक लेके ही मैंने उसको सीपिया दिया था। तो ये दो रूब्रिक में सीपिया एंड स्ट्रामोनियम, ये दो मेडिसिन आ रही थी। बट स्ट्रामोनियम कैसा रहता है, क्लिंगिंग रहता है, लाइट डिजायर, एकदम फेयरफुल रहता है। तो ये सब इसमें नहीं दिखा, तो इनिशियली उसको सीपिया दिया था 30। सीपिया 30 3 डोज दिया था, उसके बाद में एक आध बार सीपिया रिपीट किया था, और नाउ इट इज मोर देन 1 ईयर। अभी तक उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपने फॉलोअप भी देखा, तो फर्स्ट फॉलोअप में देखो जो उसका जो टोन था, वहां से ही मेरे को पुअर का फीलिंग आया था। एंड उसकी जो कंडिशन थी, हाउ ही वॉज लिविंग नाउ, की कसा तरी मी वागतो, दैट वॉज द पैथेटिक कंडिशन एंड despair about miserable existence. So this was the case. So is there any question ये केस के लिए? ये तो फिर सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। हेलो सर, पोटेंसी बताइए। पोटेंसी 30 दिया था, 30 इनिशियली 3 डोज दिया था, उसके बाद में जब भी रिपीट किया तो 30 रिपीट किया था, एक ही टाइम रिपीट किया। ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर, हाँ हाँ, अभी उसको लीजन्स वो कुछ नहीं है, तो अभी मतलब एसएल पे ही है या फिर रिपीट मतलब नहीं, कैसा एसएल किया पे है? ही है, एसएल पे ही है, नो ओके सर, रिपीटेशन। मतलब 1 साल जैसे आपने पहले बोला कि 1-2 साल हमको वेट करना चाहिए कि वापस वो रिकर हाँ, हो गया तो टेंडेंसी इज देयर स्टिल, है ना? यस। तो फिर ओके तो सर, हाँ, वापस गॉट इट। रिकर होएगा ना, देन विल सी वेदर टू रिपीट द सेम पोटेंसी और गो फॉर द हायर पोटेंसी, दैट विल सी। बट अभी उसको 1 साल हो गया, अभी तक रिपीट मन से रिकर तो नहीं हुआ है।
ओके और सर, अगर मेन हमें देखना है कि ठंडी में रिकर नहीं होता है तो आगे रिकरेंस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। यस, बोलिए ना। बट हाँ जी सर। सोरेसिस इज ऑटोइम्यून डिजीज ना, 4-5 यस साल इट में इज। रिपीट हो सकता है। यस यस। सर अगर इन केस वो रिकर हो जाता है तो पोटेंसी बढ़ जाएगी। हाँ तो डिपेंड्स, अगर ज्यादा रिकरेंस नहीं है, लीजन्स इतना ज्यादा नहीं है, इचिंग उतना ज्यादा सीवियर नहीं है, सीवियरिटी नहीं है, देन आई वुड प्रिफर टू गो फॉर द सेम पोटेंसी। अगर सीवियरिटी ज्यादा है देन आई विल गो फॉर 200। ओके एंड सर, थैंक यू सर। यू गो फॉर वेदर वी कैन, अगर रिकरेंट हुआ तो नोसोड डाल सकते हैं इन विंटर करंट। नोजोड मीन्स इंडिकेशन रहेगा ऐसा कुछ तो डाल सकते हैं, बट आई हैव नॉट यूज सो फार। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन? तो केस 2 करते हैं। दिस 20-year-old गर्ल, इसका वीडियो है मेरे पास, बट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया आई कैन नॉट शो दैट वीडियो। दिस गर्ल इज सफरिंग विथ सोरियासिस सिंस 8 years. शी स्टेज विथ अ मदर, एक elder sister 32 years, another elder sister 24 years, and father died because of MI when she was only 5 years old. वो बोलती 8th स्टैंडर्ड में थी तभी से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, तभी तो बहुत ज्यादा हो गया था। उसके बाद से एक दो बार बीच में हुआ था, लेकिन कभी लाइट लाइट होता था तो मैं स्टार्टिंग से ही केयर कर लेती। फिर मैंने पूछा इससे क्या परेशानी होती। पेशेंट बोलता है कि इचिंग होती है, सर में होता है तब बहुत ज्यादा विजिबल होता है, और इचिंग बहुत होती है, मीन्स स्काल्प में, और जो फोरहेड पे आता है लीजन, तो जब भी बहुत विजिबल होता है। बिजी रहो तो इतना इचिंग नहीं होती, फ्री रहो तो ज्यादा इचिंग होती है। फोरहेड पे सामने है तो ज्यादा विजिबल हो जाता है। सब लोग बार बार पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। फिर होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी कड़वी नहीं रहती, इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में खा लेती हूँ, ये एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा लेती नहीं थी। फिर आगे मैंने पूछा, यहाँ तक कुछ क्लूज मेरे को मिला नहीं था कि जिसके ऊपर हम लोग फॉर्म रिला कर सकते हैं। फिर आगे मैंने पूछा कि अभी क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि कंप्यूटर पे बिलिंग का जॉब करती हूँ। एक स्पेक्टिकल्स का जो ग्लासेस आता है, वो ग्लासेस का एक बड़ा डीलर है, उसके पास ये बिलिंग का जॉब करती है। बोलते ही पढ़ाई मैंने 12th तक करी है, कॉमर्स से करी है, आगे कंटिन्यू करना था, लेकिन जॉब मिल गया तो सोचिए अभी जॉब करते हैं। फिर लॉकडाउन भी लग गया था, तो बोले कि बाद में पढ़ाई का देखते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इसमें भी स्कोप है। और ये जो जहाँ पे जॉब करती है वहाँ उन लोग क्या करते हैं, एवरी संडे मतलब कैंप करते हैं। तो कैंप अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो बोलती है संडे संडे कैंपिंग भी करती है। तो वहाँ कैंप में उन लोग आई टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ये सब रहता है, तो ये आई टेस्टिंग में जाती है। तो आई टेस्टिंग भी करती हूँ, यही सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलता है। मेरे एक सर थे जिनके साथ हम कैंप करते थे, उनकी पहचान से ये जॉब मिली। अभी वहाँ जॉब करके मुझे 15 दिन हो गए। अभी तक 15-20 कैंप किए, मैंने 6 मंथ हो गए। और वहाँ पहले एक कैंप स्टार्ट किया, और कैंप में जाके उसको जो पहचान हुई, वो सर ने उसको ये दूसरी जगह पे जॉब भी दिलाया। अभी जॉब पे उसको 15 दिन ही हुआ था, और कैंप करके उसको 6 मंथ्स हो गया था। फिर मैंने पूछा वहां पर कुछ टेंशन है, तो बोला नहीं नहीं अभी कुछ भी नहीं, उल्टा मुझे बहुत मजा आता है, कैंप रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सी वॉज स्माइलिंग और वेरी चीयरफुल एंड वेरी फेयर लुकिंग गर्ल। डे बाय डे मीन्स एवरी संडे नई नई जगह पर जाना, नए लोगों से मिलना, तो ये न्यू एक्सपीरियंस रहता है। जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, उसके बाद से बहुत कुछ सीख गई। अच्छा लगता है नया चीज सीख कर, नए नए एक्सपीरियंस रहता है, नए नए लोगों से मिलना। फिर मैंने पूछा नया नया सीखने का ऐसा शौक है क्या, तो बोलती है कि नहीं, ऐसा है ना कि लाइफ में आपको सब कुछ आना चाहिए।
हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, तो इसमें अच्छा लगता है। पहले से मुझे कोई भी फील्ड हो तो ऐसा लगता है ना कि ठीक है, मुझे सब आना चाहिए। कोई भी नई नई चीज है तो सीखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। बैठ के किसी का क्या होता है वो उतना पसंद नहीं। जैसे कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटी होती है, घर पे बैठकर कुछ काम रहे तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। घूमने में ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ एवरी वीक नई नई जगह जाना। इतना कभी ट्रैवल नहीं करती थी पहले। स्कूल तो बाजू में ही था। घर में बैठकर पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है। मीन्स उसको बाहर घूमना, नई नई जगह पे जाना, नए नए लोगों से मिलना, वो बहुत पसंद था। लेकिन ये घर में सबसे छोटी थी। और प्लस अभी स्कूल तो कंप्लीट हो गया था, 12th कंप्लीट हो गया था, तो घर वाले ज्यादा बाहर जाने नहीं देते थे। लेकिन ये जॉब मिल गया तो अपने आप ये सब ट्रैवल करने लगे, तो मजा आता था उसको। पढ़ाई में अच्छी हूँ। 10th में 85% था। 12th में भी 80% था। मतलब ये गर्ल काफी इंटेलिजेंट थी, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन बीच में लॉकडाउन लगा, उसके वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई। मेरा अडेप्टेशन अच्छा है। कोई भी चीज अगर जैसे देखती हूँ तो बहुत क्विक अडेप्ट कर लेती हूँ। टेस्टिंग वगैरह करने के लिए भी भाई बोल रहे थे कि तुम जल्दी से सीख जाओ। जो भाई उसको टेस्टिंग सिखा रहे थे वो भी बोल रहे थे कि भाई तेरा पिकअप बहुत अच्छा है और जल्दी जल्दी तू सीख जाएगी। पढ़ने के टाइम भी कोई भी चीज को एक कंसेप्ट कर की तरह मैं समझती थी तो मुझे याद रहता था। जैसे जो रट्टा मारते हैं ना वो उसको नहीं लगता था, मतलब उसे उसको याद नहीं रह सकता था। रट करते रहते वैसे नहीं था मेरे को। एक बार समझ में आ जाएगा तो याद रह जाएगा, जल्दी से निकलता नहीं दिमाग। मतलब कोई भी चीज को वो एक कंसेप्ट की तरह समझती है और फिर उसको अपने आप याद रह जाता है। रट्टा मारना ये सब करना उसको पसंद नहीं था। सो दिस वॉज द केस। हेलो, हेलो सर। प्लीज शेयर यूज। हाँ। इजीली पढ़ाई करती है, सब में हाँ। जल्दी से घुल मिल जाती है और इंटेलिजेंट है। सब जगह पे जाके सबसे मिक्स होना, बातें करना, नया कुछ सीखना इसको पसंद है। फॉस्फोरस को फील लग रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और एम्बिशन इंक्रीज। एम्बिशन इंक्रीज कैसे सर? उसको एम्बिशन है ना, आगे बढ़ने का हम्म। चाहत है, बट नया नया सीखने का उसका एक एम्बिशन है। राइट। तो वो उसमें किधर भी जाती है तो सीख लेती है। वो उसका एम्बिशन उसको बढ़ाना, मतलब इच्छा उसको बढ़ाना है और कुछ सीखना है नया नया। क्योंकि उसका बराबर। एडेप्टेशन इज गुड, वेरी इंटेलिजेंट। हम्म। लेकिन किधर तो भी उसका एम्बिशन ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम। यस। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही मतलब इजीली वो सीख लेती है। है, इजीली सीख लेती है। हाँ। कोई भी नया सिचुएशन है ना तो जल्दी से वो उसमें एडजस्ट हो जाती है। थैंक यू। यस। थैंक यू सर। मुझे भी ये खूबसूरत लग रही है। हम्म। खूबसूरत सी लग रही है। हाँ। आ, मतलब घूमना फिरना, नया नया सीखना, और मतलब इजीली ये करना, घुल मिल जाना जल्दी, तो घर से बाहर रहना, तो जल्दी घुल मिल जाने वाली, एफेबल लगी है मुझे। स्टडिंग इजीली वाली है, और लर्निंग डिजायर फॉर में भी है। सो मुझे फास्फोरस ज्यादा लग रही है। डीडी यस। सोचे तो फिर सल्फर। यस। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे इसका एक्चुअली जो लर्निंग है वो जल्दी आर्ट एबिलिटी पर है, एक नंबर। सेकेंड इज ही इज चीयरफुल। थर्ड इज इंटेलिजेंट। फोर्थ इज ए जल्दी दूसरों के साथ मिलजुल होता है। मैग्नेटाइज डिजायर टू बी एंड ट्रैवलिंग डिजायर पर। मुझे इस सब कुछ लेकर मुझे फॉस्फोरस लग रहा है। बहुत अच्छा। यस।
थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई बोलेंगे? ये थोड़ा मैग्नेटाइज भी है, अट्रैक्ट भी करती है लोग, बट अफेक्टेशन में मतलब वो मैग्नीट्यूड है जो फास्फोरस में भी मैग्नीट्यूड है। यस। मतलब जाएगी और सीखने जाएगी तो लोगों को एक अपना ये दिखाती है कि मुझे इच्छा है, और उससे में भी है कि मैं सीख रही हूँ, राइट। तो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। इसको मैंने फास्फोरस का ही एक मीन्स कंपाउंड दिया था, तो क्या हो सकता है? सर मेरे ध्यान में भी कैलकेरिया फास्फोरस आया था। यस। कैलकेरिया फॉस कैलकेरिया फॉस कैसे? सर ट्रैवलिंग डिजायर है। मतलब हम्म। जो सर रीजन है ट्रैवल वो कोई भी देख पूछता है ना कि उसको अच्छा नहीं लगता है वो, एक वो चीज मतलब। और दूसरा कि जैसे अभी मैम ने बोला ही ना, ट्रैवलिंग डिजायर उसको अच्छा लगता है वो, इसकी वजह से। यस, ट्रैवलिंग अगर उसका कोर देखेगा तो ट्रैवलिंग डिजायर तो डेफिनेटली है। और एक चीज है कि जो हमको फास्फोरस से थोड़ा सा अलग करता है। हाइडिंग है, हाइडिंग। हाइडिंग कैसे? वो कोई देखता है तो छुपाती है अपने आप को, ऐसा हम्म। ऐसा मुझे लग रहा है। फास्फोरस में बेसिकली मतलब बैकग्राउंड में क्या रहता है, हम लोग जो देखते हैं ना कि बिजनेस एलिमेंट रहता है, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं था। सर इसको बिजी रहना पसंद है। हम्म। लोगों ने पूछा तो इसको अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ। और सर अफेक्शनेट भी है। यस। और सब में अच्छे से घुल मिल जाती है, या नया नया कंडीशन जो अडॉप्ट कर लेती है, तो उसकी रूब्रिक क्या लेंगे? बहुत जन कैसा रहता है कि समझो डॉक्टर बने तो भी वो लीडिंग रहते हैं, मतलब बहुत सारे पेशेंट को अट्रैक्ट करते हैं। फिर अगर दूसरे जगह पे अगर उन लोग बिजनेस पूरा शिफ्ट कर दिया है और कोई नया बिजनेस में गया, तो वो बिजनेस भी उन लोग जल्दी से सीख जाते हैं और उसमें भी एकदम माहिर हो जाते हैं। वो छोड़ के अगर तीसरी जगह पे भी गए तो भी जल्दी से वहां पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो इतना जल्दी जल्दी उन लोग एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो क्या रूब्रिक ले सकते हैं? ये लड़की का ऐसा ही था, किधर भी गई तो अभी 15 दिन हो गया जॉब पे, लेकिन ऐसी बात कर रही थी बहुत सालों से ये जॉब में है। और देखो वो जो है ये कॉमर्स की गर्ल, इसने 12th कॉमर्स किया और ये ऑप्टिशियन का लाइन में एडॉप्ट हो गई, मतलब इतना जल्दी से उसने सीख लिया। वो इनोवेटिव। इनोवेटिव तो नया चीज करेंगे ना, जब इनोवेटिव है ना। Sir, good grasping. Sociable. सोशिएबल, यस, सोच सकते हैं कि उसको नया नया जगह पे जाने का अच्छा लगता है। Affability. Affability. यस, एफेबिलिटी। कॉम्प्रिहेंड इजीली। एफेबिलिटी तो इजीली अवेलेबल ना, कि वो दूसरों को लिए मदद करती है, मतलब इजीली अवेलेबल रहती है दूसरों के लिए। Communicative. सर कॉम्प्रिहेंड इजीली। यस, कॉम्प्रिहेंशन इजी, वो एक रूब्रिक ले सकते हैं। यस, वो सोच सकते हैं। So adaptability. अडेप्टेबिलिटी, यस। कौन, वैशाली मैम बोल रहे हैं ना इसमें? पता नहीं चलता है। इंटेलिजेंट भी है ना सर, इंटेलिजेंट। हाँ, इंटेलिजेंट है, डेफिनेटली इंटेलिजेंट। नहीं, उसमें इंटेलिजेंट रूब्रिक भी है ना, लर्निंग डिजायर। यस, हाँ। मेरे को कार्सोनेसिन लग रही है। कार्सिनोसिन कैसे? कोई इंटेलिजेंट है उसका ज्यादा लिख रहा है, हम्म। नया नया सीखने का भी उसको है ना बहुत शौक। हम्म। और कार्स काफी। हाँ, बोलिए ना सर। हाँ, कार्सिनोसिन रहती तो क्या होता है, एक बात सामने आती थी कि वो जॉब करती थी, क्यों जॉब करती थी कि सबको अच्छा लगे, घर में किसको अच्छा लगा। अभी देखो एक हेयर फॉल का एक लड़का था मेरे पास, हेयर फॉल और डैंड्रफ था,
तो मैं बोला तू दवा लेने क्यों आया, इतने साल से है तो। पहले उसने दवा ले चुका था, फिर दवा छोड़ दिया बीच में, फिर मेरे पास आया। पहले कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से लेता था, अभी फिर मेरे पास आया। तो मैं बोला बचपन से जानता है मुझे, नाउ ही इज अराउंड 21-22 ईयर ओल्ड। मैं बोला अभी दवा लेने क्यों आया, तो बोला नहीं मम्मी ने बोला नहीं इसके लिए। बोला मम्मी ने बोला तो तेरे को क्या दवा लेने का देना, मम्मी को बोल देना मैं लेके आया दवा। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, मम्मी नाराज हो जाए। तो मम्मी को प्लीज करने के लिए वो दवा लेता है। मतलब किधर न किधर उसका दूसरे को मतलब दूसरे को अच्छा लगाने के लिए, दूसरे को खुश रखने के लिए ये काम करती है। तो इधर ऐसा उसका कुछ नहीं था। ठीक है सर, क्लियर हुआ? कार्सिनोसिस लेकिन बहुत करीब है इसमें। ओके, तो डिस्क्लोज सर है। यस सर। देखो इसमें मैंने फर्स्ट 2 ही रूब्रिक लिया था कि अडेप्टेबिलिटी, ट्रैवल डिजायर टू, जैसा ये बोलती है। और थर्ड जो रूब्रिक था मैंने कंसिडर किया था उस टाइम में कि ऑक्यूपेशन डाइवर्जन अमेलियोरेट। वो बोली ना कि मतलब काम में बिजी रहूंगी तो उतना इचिंग नहीं होती, इतना मालूम नहीं पड़ता है, फ्री रहेगी तो तकलीफ होती है ज्यादा। तो अडेप्टेबिलिटी, ट्रैवल डिजायर एंड ऑक्यूपेशन अमेलियोरेट, ये 3 लेके मैंने उसको कल्केरिया फॉस दिया था। तो कल्केरिया फॉस इनिशियली 30 दिया था, कुछ 2 मंथ के बाद में वापस 30 दिया, उसके बाद में एक टाइम 200 दिया था, एंड लास्ट मैंने कल्केरिया फॉस जो उसको कुछ सितंबर में दिया था, सितंबर 22, उसके बाद में देने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर रिट्रो में जब भी अगर मैंने लिया तो ये रूब्रिक भी अगर कंसिडर कर सकते, चेंज डिजायर फॉर, कि हर रोज नया नया जगह पे जाना। कि वो जो वीडियो देखे ना अगर, तो वो बोलते कि अभी आज ये संडे को कैंप किधर था, ये संडे को मुमरा में कैंप था, फिर अभी लास्ट संडे को कुलाबा में कैंप किया। कुलाबा बोला तो एक पॉश एरिया में गिना जाता है कि जिधर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और जितने भी जो रईस आदमी हैं वहां पे रहते हैं। उसके साथ में वहां पे एक दूसरा भी एरिया है जो स्लम एरिया है, नेवी नगर करके। तो वो स्लम एरिया में उन लोगों ने कैंप रखे थे। तो बोला कोलाबा में गए थे तो हम लोग का माइंड में जो इमेज था कि वो टोटल एकदम रिवर्स हो गया। देखा तो उधर भी स्लम एरिया है, उधर भी सब झोपड़पट्टी टाइप एरिया है। मतलब हर हर जगह पे हर संडे को उसको नया नया जगह पे जाने को अच्छा लगता है। तो ये कंसिडर मैंने किया था रिट्रो में, चेंज डिजायर फॉर, फिर ट्रैवल डिजायर टू अमेलियोरेट, मीन्स ट्रैवल करती है तो उसको अमेलियोरेट रहता है। इसको इधर भी देखो, कार्सिनोजिन बहुत क्लोज है, इग्नेशिया भी बहुत क्लोज है। और एक रूब्रिक है देखो, ट्रैवल डिजायर टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये ट्यूबरकुलर माइजम का जो सिम्टम है, तो उसमें ट्यूबरकुलिनम भी है, बैसिलिनम भी है और कल्किरिया फॉस है। लेकिन इनिशियल में ये 3 रूब्रिक कंसिडर करके मैंने उसको कल्किरिया फॉस दिया था, 30 दिया था, फिर 200 दिया था। और उसके बाद में अभी तक उसका लीजन रिकर नहीं हुआ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसमें? हेलो। हेलो। नो सर। आवाज आ रही है मेरी? Yes, और yes. सर एक मिनट, अगर ये कैलकेयर फॉस से चल रहा है और हम्म। समझो इन बिटवीन आ गया उसको, हम्म। तो यू विल इंक्रीज द पोटेंसी। ओके। हाँ। हाँ। अगर समझो नहीं हुआ उससे तो यू विल यूज नोसोड, ट्यूबरकुलिनम बेसिलिनम है तो
नहीं, Intercurrent. अगर नहीं हुआ तो आई डोंट रिपीट, मीन्स आई विल नॉट गिव एनी मेडिसिन। और अगर वापस आया देन वो टाइम का जो भी मैं पहले सिम्टम कंसीडर करूंगा। अगर वो टाइम अगर कुछ टोटली नई मेडिसिन कुछ इंडिकेट करती है तो पहले वो सोचूंगा। अगर नई मेडिसिन इंडिकेट नहीं करती है, उतना प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं रहेगा, देन आई विल गो फॉर कैलकेरिया फॉस, सेम पोटेंसी। लास्ट पोटेंसी विच आई गेव वाज 200, तो 200 में दूंगा और देन विल सी। Thank you. थैंक यू सर। हेलो, और एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने वो उसका ये नहीं लिया ना, नया नया सीखती है और जल्दी जल्दी सीख लेती है, उसे हाँ, क्या दैट इज रूब्रिक दिया कैलकुलेट एडेप्टेबिलिटी। फॉर्स में से? एडेप्टेबिलिटी दूसरा देखो एडेप्टेबिलिटी, ओके हाँ, सर, थैंक दूसरा रूब्रिक है एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ, जो सोराइनम का रूब्रिक है ना, कि नया चीज को अडेप्ट कर ही नहीं पाती है। दैट इज एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ, एंड दिस इज एडेप्टेबिलिटी मीन्स जल्दी से वो कोई भी चीज अडेप्ट कर लेती। इनिशियली ये 2-3 रूब्रिक ही मेरे ध्यान में आया था, एडेप्टेबिलिटी, ट्रैवल डिजायर एंड दिस ऑक्यूपेशन। एडेप्टेबिलिटी जो है ना सिंथेसिस में नहीं दिया है, ये कंप्लीट में ही दिया है। एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ दिया है सिंथेसिस में, लेकिन ये नहीं दिया, एडेप्टेबिलिटी नहीं दिया। लेकिन उसमें भी अगर कंसीडर करेंगे ना, सिंथेसिस में भी अगर ये डालेंगे ना, ट्रैवलिंग डिजायर एंड ऑक्यूपेशन, डायवर्जन अमेलिरेट, तो 8-10 मेडिसिन आती है, उसमें भी कैलकेरिया फॉस आता है। और वो जो नया नया सीखने की इसको इच्छा रहती है, उसको कौन सा रूट लेंगे अपन? उसको इंक्विजिटिव या क्यूरियस ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। So thank you all. There is always something to be thankful for. So thank you, gratitude Thank to you, sir. everyone. Thank you, sir. Gratitude Nice Liaquat speaker. sir. थैंक यू लेक, थैंक यू दिलीप दा, बहुत बढ़िया थैंक केस। यू सर, थैंक यू Thank you sir. Thank you. सर जस्ट 2 मिनट, सर पेशेंट देख Yeah. ले, 1 हाँ. मिनट में आ रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे केस। Thank you sir. थैंक यू सर, सोरियासिस के बहुत अच्छे केसेस बताए। Thank you. सर आप तीसरी भी बताने वाले थे? टाइम है तो मैं बताऊं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ले लो, हाँ प्रणीता मैम, ले लो थर्ड केस। यस सर, बिल्कुल ले लो। ओके Yeah, yeah. ओके, Ready, sir. 1 मिनट। ये केस मेरे लिए है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस से दिस वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद सोरियासिस ऐसा बोला जा सकता है, और इसने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। ये केस ने बहुत ही सिंपल केस है, आप लोग सब लोग उसको क्रैक करेंगे बहुत इजीली। ये फर्स्ट मेरे पास है ना 2012 में आया था, उसके बाद कुछ 14 में आया, फिर 15 में आया, और एक टाइम कुछ 16 में आया था। तो सेम मेडिसिन पे मैं उसको रखा था, एंड आफ्टर दैट ही इज नॉट कम, मीन्स ही इज बेटर। उसका फादर कभी भी आता है मेरे पास, तो अभी तक उसको वापस कंप्लेंट के लिए वो नहीं आया, सेम सोरियासिस के लिए नहीं आया। और एकदम इट वाज वेरी एटिपिकल केस ऑफ सोरियासिस। हमें लगेगा नहीं कि ये सोरियासिस का पेशेंट है, बट सोरियासिस वाज डायग्नोस्ड बाय सम डर्मेटोलॉजिस्ट। दिस वाज अ 12-year-old गर्ल, ये फर्स्ट जो 2012 में आया। ही प्रेजेंटेड विथ मल्टीपल रिंगवर्म लाइक इरप्शन, जो हम लोग आज रिंगवर्म देखते हैं ना, लाइक दैट ओनली, बट
एकदम रो सरफेस था. मल्टीपल रिंगवर्म लाइक इरप्शंस ऑल ओवर बॉडी सिंस चाइल्डहुड एंड इट वाज इंक्रीज सिंस 1 month. इट वाज डायग्नोज एज सोरियासिस. तो बोलता है कि खुजलाता है, खुजली बहुत आती है, सहलाता हूँ, अम्मी तेल लगाती है, तेल लगाने से अच्छा लगता है. फिर मैं बोला पढ़ाई में कैसा है, तो बोला ज्यादा अच्छा भी नहीं और ज्यादा बुरा भी नहीं, मतलब मीडियम टाइप का था. फिर बोलता है किसी को बताता नहीं है, सिर्फ मेरे भाई को ही पता है. ये मीन्स ये दिखना नहीं मांगता है. वो हमेशा क्या करने का, फुल स्लीव का शर्ट पहन के रखने का. अगर कभी हाफ स्लीव का शर्ट पहना तो क्या करेगा, स्कूल में जाएगा ना तो डेस्क के अंदर वो हाथ छुपा के रखता था. ब्रेक के टाइम में बोला क्या करता है फिर, तो बोला ब्रेक के टाइम में स्कूल से बाहर नहीं जाता. जो टिफिन रहता है वो मैं क्लास में ही खा लेता हूँ. बाहर जाऊंगा तो क्या होगा, सब लोग देख लेंगे. तो मैंने पूछा तो क्या होगा, सब लोग देख लेंगे, तो बोला टीचर को बोलेंगे. तो मैंने पूछा क्या होगा, तो बोला टीचर है ना, स्कूल से मुझे छुट्टी दे देंगे और जब तक ये सही नहीं होगा मेरे को छुट्टी दे देंगे. बोला छुट्टी देंगे तो क्या, तो बोला मेरा पढ़ाई छूट जाएगी. देखो ये क्वेश्चन पूछना जब भी मेरे को बाद में पता चला कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इसके लिए पूछना कि पेशेंट के कोर तक जाने का. नहीं तो हम लोग क्या ले लेंगे कि उसका एंग्जाइटी, बिजनेस अबाउट, ये सब आ जाएगा, लेकिन उसका कोर कुछ अलग ही था. पढ़ाई छूट जाएगी, अच्छे मार्क्स में नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या है, मम्मी पापा डांटेंगे और डांटने से उसको डर लगता है. और डांटेंगे मतलब क्या है कि उसकी मम्मी जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थी. वो लिटरली उसको मारती थी, मतलब डंडे से मारना. और जो बच्चे लोग को मारते हैं ना, डंडे से मारते या दूसरा कुछ हाथ में लेके मारते हैं, वैसा लिटरली उसकी मम्मी उसको मारती थी. तो बोलता है बीमारी से ये डर लगता है कि दोस्त लोग मेरे पास नहीं आएंगे, इसके लिए वो छुपा के रखता है. अगर दोस्त लोग नहीं आए तो क्या, खेलने के लिए चाहे उन लोग साथ में खेलेंगे नहीं, खेलने का ज्यादा शौक है, दोस्त लोग नहीं खेलेंगे मेरे साथ में. ये उसका मतलब फियर था. और दूसरा फियर क्या था, मम्मी मुझे मारेंगे. तो और जब भी मैंने ऑब्जर्व किया तो जब भी बच्चा बैठा था ना तो ही वॉज कंटिन्यूसली मूविंग हिज फीट, मतलब उसका जो पैर है ना कंटिन्यूस फ्रॉम द फीट अप टू नी कंटिन्यूस हिलते जाता था. ठीक है. सो दिस वाज द रीजन. ये मेरे पास जब भी रिपीट आया ना सेकेंड टाइम 2014 में रिलैप्स लेके, जब भी का फिर मैंने ये क्लिक किया था फोटो. सी दिस आर द रीजन. एकदम मूजिंग रीजन था. और ये आफ्टर 1 month, दिस वाज इन दिस November 14. उसके बाद में दिस इज आफ्टर 1.5 month. देखो दिस ऑल द लीजन्स आर हीलिंग नाउ. पूरा सब सूख गया था. सी दिस नाउ, उसका लीजन जो है पूरा टोटली सूख गया. सो क्या लेंगे इसमें, इनसिक्योरिटी. इनसिक्योरिटी. यस. कैसे इनसिक्योरिटी? वो हाइड है ना, सब हाइड करता है, छुपाता है. और उसको डर लगा रहता है कि अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और अच्छे मार्क नहीं आए तो मम्मी मारेगी, उसका एक डर बैठा है उसको. यस, वेरी. फिर उसको दोस्त लोग के साथ खेलना है तो ये हाथ में देखेंगे तो उसको खेलने को नहीं लेंगे साथ में, उसको निग्लेक्ट करेंगे. यस, वो उसका एक डर बैठा है, एक इनसिक्योरिटी है उसके लिए. राइट. हाँ सर, हेलो सर. उसको मम्मी इतना डांटती है कि मतलब जैसे आपने बताया मुझे भी डर लगना शुरू हो गया कि कैसे मम्मी है कि इतना मतलब छोटी सी बात के लिए भी मार्क्स कम आए तो भी मारना, तो मतलब टोटल डोमिनेशन है चाइल्डहुड में. और यस. वो खुश भी रखना चाहता है उनको, अच्छे मार्क्स लाने हैं. हाँ लीजन्स है तो उसको हाइड भी करना है, और मतलब प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, दो लाइक दे आर स्कोल्डिंग हिम, बीटिंग हिम, है ना. तो फिर मुझे कार्सिनोसिन का फील आ रहा है इसमें. राइट. मतलब प्लीजिंग से ज्यादा उसको है ना डर लग रहा था मम्मी का कि मारेंगे मेरे को मम्मी. हेलो सर. यस सर, बोलिए. मैंने दो रुब्रिक लिया, फिर फेयर पनिशमेंट एंड फियर ऑफ रिजेक्शन. राइट. मेरा भी कार्सिनोसिन से नहीं आ रहा है. ओके. टॉर्मेंटिंग होता है क्या, टॉर्मेंटिंग? टॉर्मेंटिंग. हाँ, टॉर्मेंटिंग क्या है? ले सकते हैं क्या इसमें?
टॉर्मेंटिंग का रूब्रिक क्या है? रूब्रिक की टॉर्मेंटिंग है, टॉर्मेंटिंग मतलब अदर्स है ऐसा, टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ, टॉर्मेंटिंग अदर्स, ऐसा रूब्रिक है ना? अच्छा नहीं, सर गेस्चर्स ऑकवर्ड है, गेस्चर्स में भी ऑकवर्ड है, क्या? हाइडिंग है, हाँ, गेस्चर्स, जेस्चर्स हाँ ऑकवर्ड कैसा? ऑकवर्ड ऑकवर्ड। सर वो पाँव हिलाते बैठा है ना, ऑकवर्ड हो गया होगा सामने। हाँ, उसका सिंपल रूब्रिक है भाई, पाँव हिला के जो बैठा है ना, वो ये अच्छा। रेमेडीज का मतलब डी मार्क है। अच्छा इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम। सर एंजाइटी विथ हिमसेल्फ आहे का सर ते? एंग्जाइटी विथ हिमसेल्फ नाही, कसा एंग्जाइटी विथ हिमसेल्फ? So he is moving his legs, sir. That's why I thought. हाँ, that was means it was not because of anxiety. Even if anxiety, तर which rubric to take? What rubric to take? सर ये जेस्चर्स में आएगा ना, जेस्चर्स मेकिंग इनवॉलंटरी जेस्चर्स में भी आ सकता है, प्लस ये डायरेक्ट एक्सट्रीमिटीज में भी जाके हम लोग रूब्रिक को कंसिडर कर सकते हैं, दोनों में आ सकता है। सर एक्सट्रीमिटीज रेस्टलेसनेस, यस यस, दैट इज वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं? सर मैं डॉक्टर मनोज मोहांती। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत सर अच्छा मेरा है। Yes, मेरा you picked फर्स्ट up. रूब्रिक था हाइडिंग हिमसेल्फ, सेकंड इज फियर ऑफ पनिशमेंट, राइट, थर्ड इज एक्सट्रीमिटी रेस्टलेसनेस, और फोर्थ इज फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्वर कंडीशन। मुझे कैलकेरिया कार्प लगता है। ओके सर, सर बहुत अच्छा है। योर टू रूब्रिक्स आर वेरी मच राइट, टू रूब्रिक्स नीड्स टू बी करेक्टेड। जो पनिशमेंट है ना, एक्चुअली पनिशमेंट से और आगे अगर जाएंगे तो और एक रूब्रिक है पनिशमेंट से आगे जाएंगे कि जिसमें लिटरली उसको डर लगता है, कि मारने का डर लगता है, कि जो डंडे से मारते हैं ना, हम लोग कभी कभी फिल्म में देखते हैं ना, वो रूब्रिक है। और फियर ऑफ ऑब्जर्व जो आपने लिया ना, उसके बदले में सिंगल मतलब सिंपल रूब्रिक लो, वो क्या करता है? वो हाइड करता है ना, हाइड करता है सर, हाइडिंग सिंपल हाइडिंग रूब्रिक है, हाइडिंग हाइडिंग हाइडिंग। सिंपल 1 मिनट। The fear of punishment plus defeat हाँ, plus delusion accused is, एक्यूज्ड कैसा है? मतलब वो उसको ब्लेम कर रहे हैं कोई चीज हाँ, के लिए। नहीं वैसा नहीं है, उसको ब्लेम नहीं कर रहे मम्मी, ऐसा नहीं मम्मी उसको ब्लेम करेगी, मम्मी उसको मारेगी, यही उसको डर था। तो देखो जो पनिशमेंट है ना, उससे भी हायर एक रूब्रिक है, डेल्यूजन असॉल्ट इट इज गोइंग टू बी। क्या बोलिए ना? फियर, बेटन ऑफ बीइंग बोल रही थी सर, पर वो नहीं है, आपने बता दिया ना असॉल्टेड। फर्स्ट तो मैंने यही लिया था, देखो हाइडिंग थिंग्स, ठीक है, हाइडिंग थिंग्स। फिर सेकेंड थिंग देखो, वो प्लेफुल है, ये बंदा प्लेफुल है, इसके लिए उसको डर लगता है कि यार ये सब दोस्त लोग देखेगा ना, तो फिर उन लोग खेलने को नहीं आएंगे मेरे साथ में। तो मैंने प्लेफुल लिया इनिशियली, ये दो रूब्रिक लिया। और थर्ड रूब्रिक जो मैंने लिया था वो एक्सट्रीमिटीज रेस्टलेस फीट, ये सिंपल रूब्रिक था। तीनों देखो एकदम डायरेक्ट रूब्रिक था। उसके बाद में मैंने ये डेल्यूजन और फियर का जो दूसरा रूब्रिक देखा, तो पनिशमेंट मेरे ध्यान में आया, फिर ये रूब्रिक भी मेरे ध्यान में आ जाएगा। तो डेल्यूजन असॉल्टेड इज गोइंग टू बी, अगर ये 4 रूब्रिक डालेंगे ना, तो सीधा हमारे माइंड में ये टेरेंटुला आता है हमारा। अगर ये फियर असोल्टेड भी ध्यान में नहीं आया, ये 3 रूब्रिक भी अगर लिया, प्लेफुल, हाइडिंग थिंग्स और रेस्टलेस फीट, तो भी देखो टेरेंटुला हमारे सामने क्लियर कट आती। तो उसको टेरेंटुला 6 का एक डोज दिया था, 12 में दिया था, 2012 में, ठीक है। उसके बाद में ये रिकर हुआ, 14 में आया मेरे पास, जब भी वापस 6 दिया था, फिर 15 में भी आया 6 दिया था, 16 में आया आइटम जब भी 30 दिया था। तो अभी तक लास्ट मैंने उसको टेरेंटुला 30 दिया 2016 में, उसके बाद में अभी तक तो कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो कितना मतलब विद माइंड मेथड नो,
वी कैन सिंपली गो विथ एनी डिफिकल्ट केसेस। सिर्फ हमें हमारा जो रूब्रिक सिलेक्शन रहता है, मेडिसिन जो सिलेक्शन रहता है, वो परफेक्ट होना चाहिए। सर इसमें डोमिनेशन नहीं ले सकते क्या, वो जो हम रेगुलरली लेते हैं? और डोमिनेशन प्लेफुल कैसे लिया सर? प्लेफुल इसके लिए लिया था उस टाइम में, अगर ये केस आज मेरे पास आता था ना, तो आज मैं टेरेंटुला उसको नहीं दे पाता था। तो मैं सब सोचता था कि डोमिनेशन, मम्मी मारती है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, ये वो क्या क्या, मैं उसको बेलपूरी कर देता था। लेकिन जब भी तो कुछ मालूम नहीं था, और एकदम सिंपल सिंपल रूबरी की मालूम था, सॉफ्टवेयर वगैरह भी कुछ नहीं था, तो अपना जो जेरोक्स किया था सिंथेसिस का, उसमें से देख के साइड में मेडिसिन लिख के फिर टैली करता था कि क्या क्या इसमें आ सकता है, कौन सी मेडिसिन प्रोमिनेंट आ सकती है। लेकिन रेस्टलेस फीट जो था ना, रेस्टलेस फीट से मेरे को टेरेंटुला ज्यादा लगा था उस टाइम। अच्छा, देखो मैं क्योंकि टेरेंटुला, इसकी हाँ वजह से मेरे दिमाग में जिंकम आ रहा था सर। हाँ, तो फिजिटी ऑफ लेग्स है और यस, लेकिन डोमिनेशन, जिंकम के इसलिए साथ मैंने में, पूछा। यस, हाँ, अगर डोमिनेशन कंसीडर करेंगे, डोमिनेशन कंसीडर करेंगे, एक्यूज, ये सब कंसीडर करेंगे ना, तो जिंकम आएगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ ना कि अगर ये केस आज मेरे पास आता था ना, तो आज मैं उसको टेरेंटुला डेफिनेटली नहीं देता था, और ही कुछ मेडिसिन देता था। मीन्स नहीं, जैसा बट द प्रॉब्लम जो सर बोलते हैं डोमिनेशन ना, में क्या होता है ना दिलीप भाई, हाँ यस, डोमिनेशन में क्या होता है ना कि लाइक डोमिनेशन मतलब डिक्टेट होता है ना। डोमिनेटिंग मतलब क्या, कोई डिक्टेट करता है, मतलब वो बोले वैसा करना, दैट इज डोमिनेशन। यस, डोमिनेशन इज नॉट मारना। ओके, डोमिनेशन इज नॉट मारना। डोमिनेशन मतलब वो बोले वैसा, जैसे हिटलर के टाइम में कैसा था। हाँ, कि उसने बोला डोमिनेशन वैसा ही इज, करना मांगता है। हाँ, दैट इज डोमिनेशन। यस, सॉरी, आप बोलो, कुछ बोलो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यू आर सेइंग समथिंग ना, यू आर सेइंग। हाँ नहीं सर, 3 केसेस आई फिनिश्ड। मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलिए। मतलब मेरे को एक चीज है कि टेरेंटिला में एक्चुअल बीमारी के अगर केसेस कोई निकाल सकता है तो वो दिलीप जानी निकाल सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, I'm telling you। नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स टेरेंटिला में लोग साइकोलॉजी पर ही देते हैं, लाइक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग है वगैरह, उसी पर ही देते हैं। मुझे याद है अभी भी दिलीप ने शुरू में एक केस बताया था, कॉन्स्टिपेशन इन चाइल्ड, यस विच सर, वाज क्योर्ड बाय, आई रिमेम्बर। यस तो सर, यस। जितना मतलब जितना मेरे को आर्सेनिक समझा है, उतना दिलीप को टैरेंटुला समझा है, ये मैं बताता हूँ, सबको बोलता हूँ। आई टेक योर नेम मेनी टाइम्स व्हेनेवर आई एम टीचिंग टैरेंटुला, आई टेक योर नेम। थैंक यू सर। और रेसलेस फीट हाँ का जो सर। रूब्रिक है ना, असल में ये हमको डॉक्टर शंकरन सर से सीखे अपन ने, ये रूब्रिक है ना। यस सर, हाँ, रेसलेस फीट का रूब्रिक मुझे याद है, ये डॉक्टर शंकरन सर लेते थे कि पेशेंट इज सिटिंग इन द क्लिनिक एंड शेकिंग हिज लेग, तो ही यूज्ड टू टेक रेसलेस फीट। रेस्टलेस फीट। हाँ, और कोई डॉक्टर मोहंती हैज टेकन रेस्टलेस एक्सट्रीमिटीज, डोंट टेक रेस्टलेस एक्सट्रीमिटीज, टेक रेस्टलेस फीट। When the patient is shaking the foot, then take feet. Why are you taking the whole extremities? ओके सर, थैंक यू। एक्सट्रीमिटीज मतलब पूरा हाथ पैर सब आता है उसमें, ज्यादा ये खाली पैर ही यस, रहा है। नहीं दिलीप, यू वांट टू शेयर समथिंग, यू प्लीज कंटिन्यू, मुझे नो अच्छा सर, लग रहा है। आई एम ओवर सर। क्या है, बीच में आ गए। हाँ, somebody was saying something, and please ask question to sir. He's available for 5 minutes more. You'll want. Hello, any questions from the audience to sir? Hello, guys, any questions? हेलो। सबको सुला दिया मैं। नो सर, बढ़िया सेशन थे। कोई मंत्रमुग्ध हो गए। ये कैलकेरिया फॉल्स भी अलग था, टेरेंटुला भी अलग था, और बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Any questions? Thank you, sir. Any वो questions? rubric जो कि delusion assaulted is going to be हेलो। बहुत wonderful rubric है जी, sir. Thank you so much. Thank you very much. सर आपका एक ही Indeed, बात it मेरे is को याद रहता है कि केस कितना भी डिफिकल्ट होना है, तो हमें सिंपल सोचना है, बहुत सिंपल। और जितना केस डिफिकल्ट है उतना ही वो सॉल्व करने में सिंपल रहता है। बहुत सिंपल है। आप लोग देखते होंगे हम लोग कॉमन रेमेडीज ही पढ़ाते हैं ज्यादातर। यस सर, यस। आई डोंट टीच रेयर रेमेडीज एट ऑल। वो खाली मैं वो केसेस डालते वक्त वो शेयर कर देता हूँ। बट व्हेन आई एम टीचिंग आई ऑलवेज से, आपका 95% केसेस, more than 95, I would say 99% of the cases, you do not require rare remedies. उस दिन मेरा संजय सहगल सर से बात हो रहा था,
तो सर वाज टेलिंग कि देखो आप लोग ये पढ़ाते हो चॉकलेट वगैरह, बट ये केसेस देने के बाद में भी ये रेमेडीज को बाद में आपका पॉलीक्रस्ट लगना ही लगना है। यस सर, हीरोइन से 100% केस क्योर हुआ? नो, बिल्कुल नहीं देखा मैं अभी तक। आई हैव नॉट सीन हेलिएक्टस क्योरिंग द केस। ओके, आई हैव नॉट सीन टेरेंटुला क्यूबेंसिस ट्रीटिंग द केस, कंप्लीट केस है। टेरेंटुला हिस्पानिया इज ओके। मतलब ये जो रेयर रेमेडीज, इवन वैलेरियाना, ये रेमेडीज नहीं होल्ड कर पाती। जितना आप पॉलीक्रस्ट के रेयर फैसेट्स को आप सीखोगे ना, अनकॉमन फैसेट्स ऑफ द कॉमन रेमेडीज ऑलवेज गो विद दैट गाइस। कैंसर Yes. हो, कुछ भी हो, है ना, हमेशा याद रखो, problems of the difficult things lies in very simple things. Very simple thing. If you're not happy with the government, just press the no button. कितना simple है. If you don't like Prime Minister, don't vote for him. कितना simple है. yes. So that it is like that only. So thank you very much. Dilip Thank bhai, you, it sir. is always Thank you very always a pleasure to listen Thank you, to sir. you. Always a pleasure to listen to you. It has been 84th lecture, guys, since we started this Guruji के साथ गुरुवार, which I feel so happy. And अभी मुझे मैं अभी बहुत नॉस्टैल्जिक बनता जा रहा हूँ। जैसे जैसे 100 लेक्चर नजदीक आ रहा है, मुझको मतलब ये हो रहा है कि यार ये सीरीज खत्म होने वाली है। तो आप लोग दुआ करो कि और हम 100 सीरीज रिस्टार्ट को, करो सर, रिस्टार्ट करो। हाँ कोशिश हम करेंगे इंशाल्लाह कि 100 को एक्सपेक्टिंग और सर। 200 करे, 500 करे। हाँ मैं जानता हूँ सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कितना पॉसिबल होता है। जरूर हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और वेट करना, बिकॉज 100 अभी जो हो रहा है, अभी सारा क्रीम 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 आ रहा है। एंड 100 लेक्चर्स we have a plan which we'll disclose later, inshallah. Thank you very much for blessing. Thank you, Dalit. I love you. I Thank you always very love much, sir. my, Gratitude, Thank you, sir. sir. I love you. He's my brother. Okay, there are very few people I love very much from bottom of my heart. Dilip is one of them. My love. Thank you. Thank you, guys. Thank you very much. Bye bye. God bless. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ बेटा, बोल हाँ बोल। सर, एक रिक्वेस्ट थी सर, और मतलब सर लेक्चर रख सकते हैं क्या, स्पेशली टेरेंटुला, जैसे बिल्कुल, आपने इतना बोला था। बिल्कुल, आर्सेनिक बिल्कुल आप है। बहुत अच्छा बताते हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, बिल्कुल रखो बेटा। दिलीप भाई मेरा कभी बोलो तो आ जाता है। उसको तो अभी 4-5 दिन पहले बोला। हमने लास्ट 20 लेक्चर्स के अंदर दिलीप का नाम रखा हुआ था, बट मैं परसों ही बोला प्रणीता को, मेरा दिलीप को फोन कर आएगा। ही इज माय ब्रदर, कभी भी It is आएगा। always a pleasure, sir. आई नो डार्लिंग, आई नो हाउ मच यू लव अस। आई नो, इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। दिलीप इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू गाइस।